Good evening, guys. Please, let me know whether I'm audible or not. Please let me know whether I'm audible or not. I'm very sorry for the technical glitch that we had today. Well, since I had today morning I couldn't take class, so I felt that I must take class now. So there is a bit problem today. Technical problem is that one problem that my video would not be visible to you. Well, I am feeling quite well, so I'm okay type. Audible. Yeah, video would not be available today. Yes. Today, I'm going to share the screen. Two problem is there today. One, I am not able to write on pad. Number one, and number two, my video would not be visible to you. Okay, but don't worry. I'll conduct the session very smoothly. It's technical problem and problem is with my laptop, and I'm going to change this by tomorrow itself. Tomorrow morning, I'll have different laptop. Okay, so please bear with me and I'll make class very interesting today. Don't worry, I have enough material. Okay, just support and let me know if you are getting any problem in between, right? So just bear with me. I'm going to share the screen, and here's the screen. Just let me know whether my screen is visible to suspend the class. Yeah, don't worry, need not to suspend the class. Okay, my screen is visible to you. Okay, all right. So we were studying the preposition, right? Uh, Preposition English class 5. This is fifth class of English. Due to some technical problem, I am not able to use my pen tab, so I am writing by using mouse. So I'll write a bit less, but don't worry, we'll do a lot of practice. So today's agenda, preposition entirely. We are going to cover preposition. If you remember, a day before study, I had started preposition, okay, and I had explained you about preposition on time, preposition related to time, okay, and we had some practice sheet as well. कुछ थोड़ा बहुत हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया था. आज के सेशन में हम बाकी जो प्रपोजिशंस हैं उनको कवर करेंगे, हाउ वेयर इनका यूज करें, राइट. सो स्टार्टिंग बाय वन. फर्स्ट देखिए, प्रीपोजिशन में दो चीजें बहुत कॉमन है. प्रीपोजिशन में एक तो प्रीपोजिशन आपको होना चाहिए टाइम से रिलेटेड, ठीक है, जो हमने परसों किया था. दूसरा है प्लेस. So around 80% questions that moves around time and place. ठीक है. So if you recall day before study session, the very first preposition which I had picked up was at. ठीक है. at के बारे में हम लोगों ने बात की थी और हमने कहा था at टाइम के साथ लगता है, मील के साथ लगता है, एज के साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एट का रिलेशन प्लेसेस के साथ भी होता है, जो शायद मैंने कल या परसों हल्का फुल्का आपको बताया था. एट एयरपोर्ट, एट होम, एट डेस्क एक्सेट्रा. तो टाइम से रिलेटेड जितने भी प्रीपोजिशंस थे, ठीक है, दे वेर नॉट यूज्ड ओनली इन टाइम. वो सारे प्रीपोजिशन प्लेस में भी यूज होते हैं, उनका रोल थोड़ा अलग हो जाता है. आज के लिए तो मैं बहुत ही मेहनत किया था पूरा दिन. व्हेन अर्ली मॉर्निंग आई सस्पेंड द क्लास, सो आई थिंक आज की क्लास बहुत अच्छे से करेंगे एंड आई विल मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई हैड प्रिपेयर्ड अ चार्ट फॉर यू गाइस. प्रिपरेशन जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप, ठीक है. सो होप चार्ट इज विजिबल टू यू एंड ऑल द प्रिपरेशन वी विल कवर बाय चार्ट. देखिए, एक प्रिपरेशन है इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ. देखिए, द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द मैन. इन फ्रंट ऑफ जब भी यूज होगा, एक चीज आप प्रिपोजिशन के लिए याद रखिए, हिंदी से
या आप डेली लाइफ में जो लैंग्वेज बोलते हैं उससे कंपेयर मत करिए। क्या कहा जा रहा है उसको विजुलाइज करिए। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कहाँ यूज होगा और किस सेंस में यूज होगा, वो ये फिगर बहुत क्लियरली आपको बता रहा है। द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द मैन, हियर इट्स डॉग, हियर इट्स द मैन। इफ सिचुएशन इज लाइक दैट, समवन इज गोइंग, आगे आगे कोई जा रहा है, डॉग इज इन फ्रंट ऑफ। तो इन फ्रंट ऑफ तीनों ये एक ही प्रोनाउन है, इन फ्रंट ऑफ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इन हो जाएगा फिर फ्रंट लिख के फिर स्पेस, नो, इन फ्रंट ऑफ, दिस इज वन प्रीपोजिशन, इट इज यूज, ये सिंग एक ही जगह पे यूज होगा, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, सेकंड है बिहाइंड, जस्ट इन फ्रंट ऑफ का अपोजिट होता है बिहाइंड। द डॉग इज बिहाइंड द पोस्टमैन। ठीक है, डॉग देखिए छोटा सा डॉग दिख रहा है ये, और पोस्टमैन ये है, तो बिहाइंड मतलब उसके पीछे पीछे चल रहा है, इन फ्रंट ऑफ मतलब आगे। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब होता है आगे। थोड़ा सा मैं इसको इनलार्ज करता हूँ स्क्रीन को, शायद आपको अच्छे से विजिबल होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू का यूज कैसे करेंगे, क्या सिचुएशन होगी। अगेन, नेक्स्ट टू की हिंदी क्या होती है इसको मत याद रखिए आप, नो, नेक्स्ट टू को विजुलाइज करिए इस पिक्चर से। द डॉग इज नेक्स्ट टू द बोन्स, ये सारी बोन्स रखी हैं, एंड डॉग बिल्कुल उनके सामने है, बिल्कुल पास में है, बगल में है। ठीक है, द डॉग इज नेक्स्ट टू द बोन्स। ठीक है, बिटवीन, द बोन इज बिटवीन द टू डॉग्स। तो बिटवीन और एमंग ये बहुत फेवरेट पेयर है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। बिटवीन और एमंग दोनों का कहाँ यूज करेंगे, कैसे करेंगे। तो बिटवीन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर टू पीपल, तो समथिंग इज बिटवीन ए एंड बी, दैट इज बिटवीन। अगर दो की जगह यहाँ पे तीन डॉग होते तो होता एमंग द डॉग्स। ठीक है, चलिए हम अपनी नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। above एंड अंडर, above एंड अंडर, ये जो इमेज है ये मैं आपको शेयर करूंगा, डोंट वरी, बट अभी लर्निंग के लिए देखिए। above, द बोन इज above द डॉग। हियर इज द डॉग एंड दिस बोन बिल्कुल ऊपर है, और अगर उसके नीचे है देन इट्स यूज अंडर। द डॉग इज अंडर द बोन, तो अगर बोन के रिस्पेक्ट में डॉग नीचे है और डॉग के रिस्पेक्ट में बोन ऊपर है, द बोन इज अबव द डॉग एंड द डॉग इज अंडर द बोन। कल मैंने एक एग्जांपल, कल नहीं परसों शायद मैंने एक एग्जांपल कराया था आपको, अंडर द ट्री, समवन इज अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे था कोई, तो पेड़ बिल्कुल ऊपर था, उसके नीचे कोई छाया में बैठा था। तो एबव अंडर दोनों एक ही रिलेशन है, एक के ऊपर। नेक्स्ट है ओवर एंड बिलो। द ब्लू डॉग इज ओवर द फायर हाइड्रेंट, फायर हाइड्रेंट है एंड ब्लू डॉग इसके ऊपर है। ठीक है, द फायर हाइड्रेंट इज बिलो द ब्लू डॉग। ओवर और बिलो ये मीनिंग, और अंडर और एबव ये मीनिंग, दोनों डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक है, एक के नीचे ये है तो ओवर बिलो भी ठीक है, एबव अंडर भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट इन एंड ऑन। द डॉग इज इन द बेड। ठीक है, अगर बेड के ऊपर है कोई लेटा हुआ, डॉग इज इन द बेड, और अगर पैर लटका के कोई बैठा हुआ है ऐसे कुछ, तो होगा ऑन द बेड। आप विजुलाइज करिए कोई बेड पे है और बैठा हुआ है, दैट पर्सन इज नॉट लाइंग लाइक दिस, देन होगा ऑन द बेड। ठीक है, सो द डॉग इज इन द बेड। देयर इज अ थर्मामीटर इन इट्स माउथ। माउथ के अंदर अगर थर्मामीटर लगाया हुआ है तो होगा देयर इज अ थर्मामीटर इन इट्स माउथ। ऑन है
द डॉग इज ऑन द टेबल। देखिए टेबल है और टेबल के ऊपर अगर है तो डॉग इज ऑन द टेबल, इन द टेबल नहीं होगा। या जैसे यहाँ पे इन द बेड यूज हुआ है, याद रखिए इन द बेड होता है अगर पर्सन इज कंप्लीटली लाइंग इनसाइड द बेड, क्योंकि बेड में होगा उसका पैर देखिए ऊपर रजाई है उसके अंदर से निकला हुआ है, ब्लैंकेट के नीचे से इसके पैर निकले हुए हैं, तो यहाँ पे इन द बेड हुआ है। ठीक है, और सिर्फ बैठा होता तो ऑन द करते, जैसे टेबल है टेबल के ऊपर जस्ट है तो ऑन द टेबल। द वुमन हैज डार्क स्लैब ऑन हर, ठीक है ये तो मजाक था। इंग्लिश ग्रामर प्रिपोजिशन ऑन टाइम, क्विक रिकैप, ये मैं करा चुका हूँ आपको। एट लगता है स्पेसिफिक टाइम पे, आई गेट अप एट 7 o'clock, द मूवी स्टार्ट्स एट 8:30, दे सिंग carols at Christmas, come and visit us at Thanksgiving। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो बताना चाहूंगा मैं आपको। ये जो एट क्रिसमस लगा है ना, इन सर्टेन बुक्स एट क्रिसमस के साथ साथ ऑन क्रिसमस भी मिलेगा। ठीक है, अगर ऑन, नोट डाउन इफ यू हैव पेन एंड पेपर, अगर एट क्रिसमस की जगह ऑन क्रिसमस करते हैं तो भी ठीक है, बोथ आर द करेक्ट वन। ये किसी एसएससी में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था और लोगों ने ये फाइल भी किया था उस पर ऑब्जेक्शन अपना कि सही कौन सा है गलत कौन सा है, तो फिर कमीशन ने दोनों को सही माना, एट भी सही है ऑन भी सही है। ठीक है, क्रिसमस के लिए। ऐसे ही क्या अनदर फेस्टिवल है ईस्टर, ईस्टर के लिए भी एट भी यूज होता है और ऑन भी यूज होता है, दोनों यूज होते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन समवेयर एट क्रिसमस ऑन क्रिसमस बोथ आर करेक्ट। कम एंड विजिट अस एट थैंक्सगिविंग। ठीक है, तो थैंक्स गिविंग एक कोई पार्टी टाइप है, कोई ऐसा मीटिंग है, कम एट पार्टी जैसे होता है, सेम वे एट थैंक्स गिविंग। ऑन के लिए मैंने आपको बताया था डे और डेज के लिए, डेज और डेट्स के लिए होता है सबसे इजी, आई विल विजिट यू ऑन वेंसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन मार्च 27th, ऑन 16th, ये तो सबसे इजी होता है डेट और डेज वाला। मंथ और ईयर्स के लिए इन यूज होता है, यू आर हैबिचुअल, ये भी बहुत इजी है हम कर भी चुके हैं। माई बर्थडे इज इन जनवरी, आई एम गोइंग ऑन वैकेशन इन अगस्त, शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन दिस टाइम, टाइटैनिक संक इन दिस। ठीक है, तो डे डेट्स मंथ और ईयर, ऑन और इन, ये वाला तो आपने करा ही होगा, मतलब ये सबसे इजी होता है, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। टाइम के लिए मैंने आपको बताया था कि इन, कल अगर आप वेरी फर्स्ट सेशन इफ यू रिमेंबर, इन रिलेटेड टू टाइम, मैंने आपको बताया था इन इज यूज्ड इन सीजन, मंथ, ईयर। तो अभी थोड़ा उसको और एक्सपेंड किया है इन द डिकेड, ये द भी आएगा, द आर्टिकल है हमेशा आता है। तो लाइफ वॉज डिफिकल्ट इन द 1940s, इन के साथ द आएगा हमेशा। इट वॉज बिल्ट इन द 16th century, we are living in the 21st century, there were many hippies in 60s। ठीक है, और सीजन और टाइम पीरियड के लिए मैं आपको बता चुका था, वी गो टू द बीच इन समर, इन स्प्रिंग, इन 10 मिनट, इन 3 आवर, बट यहाँ पे द नहीं लगेगा, द लगेगा डिकेड एंड सेंचुरी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू चेक योर आर्टिकल्स, आप द लगाना आपको सही से आता है कि नहीं आता है, उस सेंस में भी ये चेक हो सकता है। तो प्लीज जो भी आपका नोट्स है, इफ इट्स डिकेड और सेंचुरी, देन वी यूज इन प्लस द, इन द, इन द, बट सीजन इन द समर नहीं होगा, इन द स्प्रिंग नहीं होगा, वी गो टू द बीच इन समर, नॉट इन द समर। ठीक है, तो आप इस नोट्स को इसको नोट कर लीजिएगा कि कहाँ पे द लगेगा और कहाँ पे इन लगेगा। ठीक है, आई विश आई कुड राइट, ये एट ऑन इन, इन तीनों में कई बार रिवीजन के लिए एट ऑन इन के लिए एक साथ
फिर से इमेज डाल दिया मैंने। स्पेसिफिक टाइम आई वोक अप एट 7 o'clock, सी रिटर्न होम एट द मिडनाइट। देखिए ये जो मिडनाइट वाला है ना और यहाँ पे एट लगा है, ये बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बाई लगाएंगे, बाई मिडनाइट, वो भी हिंदी के हिसाब से इट सीम्स करेक्ट। बाई मिडनाइट सी रिटर्न होम बाई द मिडनाइट, नो, एट द मिडनाइट। हॉलीडे एवरीवन सीम्स हैप्पी एट क्रिसमस। अगेन यहाँ पे ऑन भी लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट मी चेक योर कमेंट्स whether you are comfortable or not guys। अंडर और बेनिथ का एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपके पास ऑप्शन में क्या अवेलेबल है। क्योंकि वो ब्लैंकेट का अंदर था, अरे ब्लैंकेट के टेंशन क्यों ले रहे हो यार, ठीक है। तो हाँ इनसाइड द ब्लैंकेट, इनसाइड द ब्लैंकेट या इन द ब्लैंकेट, थिंक जो उसका मीनिंग कन्वे हो रहा है वो सेम हो रहा है। दैट व्हाट इफ डॉग कवर्स, अरे डोंट डोंट मेक जो अंडर बेनिथ का डिफरेंस क्या है, देयर इज नो सच डिफरेंस, ओके। डिफरेंस है कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। हाउ द डॉग इज अंडर द बोन, हाउ द डॉग इज अंडर द बोन, ये कब का है, आई एम नॉट गेटिंग क्या है। प्लीज फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स इफ यू वांट टू टीच अस इन पीडीएफ फॉर्मेट प्लीज सेंड अस so that we could make notes, it's difficult to make notes while watching the lecture, okay। Under and below ka his bone is hanging above, it's for your understanding। See, uh, this PDF entirely I'm going to share you. Don't worry. If you are not able to make notes from here, then whenever you will get the PDF, make your notes। मैं ये इसलिए अभी नेक्स्ट 5 मिनट्स लगेंगे मुझे, ये मैं पूरा PDF कवर करके फिर आपके लिए जो शीट है, प्रैक्टिस शीट है जो रेडी है, आपने 25 क्वेश्चंस कर भी रखा है, वो शीट करानी है मुझे आज। सो आज 4 to 6 चलेगा, और टेक्निकल प्रॉब्लम रही इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। ऑन डेज का, इन है मंथ का, आप कर चुके हैं। पार्ट ऑफ द डे है अगेन इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग एंड एट नाइट। एट नाइट ये इट्स अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन है। इन द मॉर्निंग इन द आफ्टरनून तो होगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू नाइट हम यूज करते हैं एट द नाइट, ठीक है। नाइट के लिए हमेशा यूज होगा एट द नाइट, टाइम के रिस्पेक्ट में। वी विल हैव अ पार्टी ऑन फ्राइडे नाइट, ऑन मंडे नाइट, लेकिन बेड टाइम के लिए बेड एट नाइट। I know it's a bit annoying for you this time reading the PDF, but please preposition on places। Again, आप इस सिचुएशन को विजुलाइज कीजिए। I got a WhatsApp message that you are very fast, please speak slow, okay। हार्डली नेक्स्ट 5 मिनट आप सारे प्रिपरेशन देख लीजिए, फिर हम तो प्रिपोजिशन का सेट करेंगे 50 क्वेश्चंस का। बिहाइंड या पहले भी कर चुके हैं, इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू एंड बिसाइड। देखिए अगर आप पूछे नेक्स्ट टू और बिसाइड में क्या डिफरेंस है, तो दोनों ऑब्जेक्ट लगा के है, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट टू भी ठीक है और बिसाइड्स भी ठीक है। नेक्स्ट टू एंड बिसाइड्स, डॉग इज नेक्स्ट टू द बोन, बिल्कुल बोन के आगे ही है। डॉग इज बिसाइड्स द बोन, मतलब बोन के बगल में ही है। बिटवीन का आप कर ही चुके हैं। नियर एंड क्लोज टू, अगेन बोथ कन्वेज द सेम मीनिंग। द डॉग इज नियर द बुक, डॉग इज क्लोज टू द बुक, दोनों सेम है। इट डिपेंड्स, अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपके पास ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है। एबव एंड ओवर, अगेन मैंने पहले ही बताया था कि एबव ओवर का, जैसे आपने किसी ने पूछा था अंडर और बेनिथ का क्या डिफरेंस है, वही जो एबव एंड ओवर का है, ठीक है। बिलो स्लैश अंडर, बिलो अंडर भी वही चीज़ है। ये डॉग और बेड वाला फिर से आ गया, तो ये हम कर ही चुके हैं। हाँ, कुछ फिगर से भी ये
दिमाग में सेट करने के लिए क्या एग्जैक्ट मीनिंग है? बिहाइंड यानी किसी के पीछे छुपा हुआ, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ सामने, नेक्स्ट टू का मतलब जस्ट बगल में, बिटवीन, नियर, नियर का मतलब है थोड़ा सा गैप है इन दोनों में, ठीक है ना, पास में ही है, अबव, एकदम ऊपर, बिलो, अगर बॉक्स के बिलो है बॉल, ठीक है, एकदम पूरा कवर्ड चारों साइड से बिलो, इन है तो बॉल इज इनसाइड द बॉक्स, इसका मतलब होगा बॉल इज बिलो द बॉक्स, द बॉल इज बिलो द बॉक्स, द बॉल इज इन द बॉक्स, एकदम बिल्कुल चारों तरफ से कवर है, जैसे वो ब्लैंकेट में या रजाई में बिल्कुल कवर हो गया था, हमने इन द बेड यूज किया था, सिमिलर सेंस है इन द बॉक्स, द बॉल इज इन द बॉक्स, और एकदम बॉक्स के ऊपर है देन वी यूज ऑन द बॉक्स, ठीक है। सो दिस वाज एंड आई थिंक दिस वाज द सेम अगेन। इतने सारे, ये जो सारे एग्जाम्पल हैं मैंने आपको इसलिए बनाया था, ये कई सारे इमेज इधर उधर से लेके, कि आप अपने दिमाग में इन चीज़ों को विजुलाइज कर सकें कब कौन सा कहाँ यूज करना है। प्लस पूरे प्रीपोजिशन में हार्डली 10 to 15 एक्सेप्शंस हैं, जैसे इन से बेड टाइम के लिए मैंने कहा था, ठीक है, 10 to 15 एक्सेप्शंस हैं जिनको आपको अलग से नोट डाउन करना है, उनको दिमाग में रखना है, और एग्जाम में एक दो एक्सेप्शन भी पूछ लेते हैं और वो हर कोई गलत करके आता है, ठीक है। तो जहां भी कुछ लगे कि रूल्स के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, दैट इज द एक्सेप्शन। सो हार्डली 10 to 5 एक्सेप्शन है, आप एक बार एक जगह देख लेंगे तो आई एम श्योर यू विल नॉट रिपीट द मिस्टेक अगेन, ठीक है। सो दिस वाज द प्रीपोजिशन। अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिस पे। 17th क्वेश्चन के लिए कुछ लोगों ने क्वेरी रेज की थी, प्लीज राइट इन पेंसिल। तो देखिए जो मैंने एक्सेप्शन की बात में कर रहा हूँ ना, राइट इन पेंसिल ही होगा, और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्लीज राइट इन पेंसिल ही होगा, हिंदी में पेन से लिखो, ठीक है, प्लीज राइट विथ पेन, आपको बहुत फेमिलियर लगेगा कि राइट विथ पेन ठीक होगा, बट एक्चुअली में टेक इट एज एन एक्सेप्शन एंड नोट डाउन समवेयर, 17th का पेंसिल इन पेंसिल ही होगा, ठीक है। तो कल हमने 25 किए थे इसके, इन 25 में अगर किसी को कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज डू टेक्स्ट। सर व्हाई इट इज यूज्ड इन आफ्टरनून बट एट नून? सी आफ्टरनून एंड नून इज डिफरेंट थिंग, मतलब मीनिंग इज सेम, बट एट नून एंड इन आफ्टरनून, ये आफ्टर आने की वजह से इन लग जाता है। हाँ तो 17 क्वेश्चन इन पेंसिल एक्सेप्शन है, आपको रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, 12 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, 12 सेज ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश इन 2005, करेक्ट है। इन वाला मैंने यहाँ दिखाया था ना आपको, इन वाली इसी में देखिए, माई बर्थडे इज इन जनवरी, इन अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड इन 1492, सेम पैटर्न पे ये है आपका, ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश इन 2005। आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी काइंड ऑफ डाउट, ओके। सर इसको सेंड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 and 25 पहले से पूछ रहा है, बिलो एंड अंडर का, सी बिलो एंड अंडर का है सच नो डिफरेंस, मैंने आपको बताया ना, ये इमेज दिखाई ना मैंने आपको लास्ट में, यही क्लियर करने के लिए मैंने बताया आपको। ये देखिए बिलो अंडर, बिलो इज यूज्ड, अंडर इज यूज्ड, ये जानबूझ के मैंने ये इमेज डाली है कि बिलो और अंडर ये दोनों एग्जांपल देखिए एज इट इज, डॉट और कॉमा का भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बिलो द ब्लू डॉग, अंडर द ब्लू डॉग, दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो एज सच स्पेकुलेट मत करिए नेसेसरली क्या डिफरेंस है, नियर एंड क्लोज टू इज द सेम, अबव एंड ओवर इज द सेम, ठीक है।
सर ए प्रॉपर डिफरेंस बता दीजिए। हाँ ठीक है, नून इज पर्टिकुलर दैट्स व्हाई वी यूज इट। आल, आल मतलब क्वेश्चन 5। वेट, क्वेश्चन 5 है, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन 5। थैंक यू सर, डिपेंड अपॉन द सेंटेंस, हमको अपना आंसर चेक करना है। हाँ ठीक है, सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको, ये देख लीजिए। ये सारे में जो, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपके सामने है, और जो करेक्ट प्रिपोजिशन है वो लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में किसी को दिक्कत है तो वो टेक्स्ट करे, वो पिंग करे मुझे। नॉट एक्चुअली 5, आप अपने क्वेश्चन, आप अपना आंसर लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, 1 to 10, प्लीज नोट डाउन योर क्वेरी। आई एम गोना टू डिस्कस ईच एंड एवरी वन। जो भी करेक्ट है वो मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में क्वेश्चन नंबर 4, चलो 4 आ गया, देखते हैं भाई 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 से, वी कैन ओनली गेट टू द कैंप ऑन फुट। हाँ ठीक है, बाई फुट नहीं होगा। हमको लगता है कि पैर से चलेंगे तो बाई फुट चलेगा, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ ऑड टाइप का है तो प्लीज कंसीडर इट एज एन एक्सेप्शन एंड ऑलवेज यूज ऑन फुट, नॉट बाई फुट। नॉट, ये मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था, नॉट बाई फुट, नॉट विद फुट। ठीक है, 4 में अगर ये ऑन फुट आपको प्रॉब्लम कर रहा है, विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, सी ऑन फुट मतलब चलते भी है ना, तो अगर आप इसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज टेक इट एज एन एक्सेप्शन। एंड ट्रस्ट मी, हार्डली 10 to 15 एक्सेप्शन ही बनेगा टोटल प्रीपोजिशन में, जो आपको और दिखेगा। ठीक है, अगर you are not able to visualize the fourth one, consider it as an exception. I go to college on foot, yeah, obviously on foot ही होगा। oh, is it correct? हाँ, yes it is correct। तो 1 to 10 में आई डोंट थिंक किसी को कुछ और पूछना है। बाई कार एंड बाइक, हाँ बाई कार भी होगा, मतलब कार के साथ बाई होता है। ठीक है, नो। क्वेश्चन नंबर 1 to 10, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11 to 20। क्वेश्चन नंबर 11 to 20। क्वेश्चन नंबर 19, 12। ओके, 12 और 19, चलिए दो देख लेते हैं पहले। 12, तो 12 तो बता दिया ना, ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश इन 2005। जो मैंने पीडीएफ दिया उसमें एक्सप्लेन भी किया था, इन वाला कहाँ गया ये, इन द सॉरी, ये देखिए इन 1942, सिमिलर लाइन पे ये है आपका 12। ठीक है, 12 हो गया। सर यू सेड सिंस एंड फॉर विल बी यूज इन कंटिन्यूअस टेंस, बट 11 में, हाँ यूज हो सकता है बिल्कुल। ये जो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें तो मस्ट है, बाकी फॉर यहाँ भी यूज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो सिंस फॉर वहां तो होगा ही होगा, वहां पे सिंस एंड फॉर एज अ प्रिपोजिशन होगा, यहाँ पे अदर मीनिंग्स में यूज आ रहा है। 12, कैन वी यूज सिंस, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। हाँ यस, ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, एक मिनट एक मिनट, ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, नहीं, सिंस आप नहीं यूज कर सकते। उसका रीजन ये है कि उसने हिंदी में करके देखिए, ही स्टार्टेड लर्निंग सिंस 2005 का मीनिंग होगा उसने
उसने 2005 से इंग्लिश सीखना शुरू किया था। ठीक है, तो ये अभी भी कर नहीं रहा है, दैट इंसिडेंट हैज डन, ये काम हो चुका है। ठीक है, तो अब अगर कोई चीज इन प्रोग्रेस होती देन वी यूज सिंस। ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2005, देन इट्स करेक्ट। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग। यहाँ पे सिंस आप इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि स्टार्टेड, इट्स पास्ट इंडिफिनिट टेंस, और सिंस के लिए जरूरी है कि कुछ चीजें प्रोग्रेस में दिखाई जाएं। ही हैड स्टार्टेड लर्निंग, सॉरी he had started learning since English since 2005, it's correct। तो since के लिए हमेशा since and for के लिए ing फॉर्म आएगा, एंड whether it's continuous या perfect continuous होना चाहिए, यहाँ पे since नहीं आएगा। हाँ, he had started learning English since 2005, yes it's correct। see you of see you at the conference in no 21st। I'll see you at the conference, not in the conference। देखिए, एट जो प्लेसेस पे यूज होता है ना, एट, अब प्लेटफॉर्म पे कोई वेट कर रहा है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, बस स्टॉप है, तो बस स्टॉप पे आप खड़े हैं, आई एम नॉट इन द बस स्टॉप बट एट द बस स्टॉप। ठीक है, अब इससे कंपेयर करिए आप कॉन्फ्रेंस को। कॉन्फ्रेंस इज बेसिकली मीटिंग ऑफ सर्टेन पीपल, कुछ लोग हैं जो मिलके बात कर रहे हैं, वो कॉन्फ्रेंस हो गया। इफ द कॉन्फ्रेंस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड अ कॉन्फ्रेंस रूम, ओके, कॉन्फ्रेंस रूम में एक पर्टिकुलर गेट है एंट्री का, ये आप एंट्री का गेट है कॉन्फ्रेंस रूम का, एंड यू आर वेल अवेयर दैट दिस कॉन्फ्रेंस रूम इज इंटायर कवर्ड, ऊपर से पूरा कवर्ड है लाइक अ रूम, देन यू कैन से इन द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब ये एट हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि मे बी कॉन्फ्रेंस ओपन स्काई के अंदर हो रही हो, चार पांच लोग ऐसे खड़े हों और ये कह रहे हो कि हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी नहीं है कि बंद कमरे में ही हो, इट कुड हैपन ऑन ओपन स्काई, सड़क पे भी हो सकती है कोई मीटिंग चार लोगों की, एंड इट्स कॉन्फ्रेंस। तो इन कॉन्फ्रेंस आप नहीं कह सकते। व्हेन यू आर वेरी श्योर दैट कॉन्फ्रेंस इज हैपनिंग इनसाइड अ क्लोज रूम एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर इनसाइड, देन यू कैन से आई विल सी यू इन द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अनटिल अनलेस इट इज जनरलाइज, या ये विजुलाइज आप जब तक नहीं कर पा रहे हैं कि वो एकदम क्लोज है, एट ही लगाएंगे आप, नॉट इन। तो एट और इन का फर्क शायद आपको समझ में कुछ आया होगा। इन मीन्स, सी इन, हाँ अगर आप ये कह रहे हैं कि यू आर ऑलरेडी इन, जैसे मे आई कम इन, तो मतलब इन साइड द मीटिंग है आप, ना कि रूम में है। इन मीन्स यू आर ऑलरेडी देयर, यस। ओके सर, कैन वी यूज, सर कैन वी यूज प्लीज राइट विथ पेंसिल, प्लीज राइट विथ पेंसिल, नहीं प्लीज राइट विथ पेंसिल नहीं, प्लीज राइट इन पेंसिल। जनरली जो हम यूज करते हैं ना, जो लैंग्वेज अपनी कॉमन इंडिया में स्पेशली, या फिर जनरल सेंस में हम कह सकते हैं, जैसे आपके यहाँ है अरुणाचल में, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जेंडर ना, वह जाता है, वह जाती है, दोनों के लिए आप सेम कहते हैं वह जाता है, एंड बोथ पीपल आर गेटिंग अंडरस्टैंडिंग, है ना, सब कोई जाता है वहाँ पे, कोई जाती नहीं है वहाँ। इंग्लिश के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि विद पेंसिल हम यूज टू हैं, आप बोलेंगे विद पेंसिल, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द ग्रामर, वो जाता है, आप भले कोई लड़की वो जा रही है, तो वह जाता है आप बोल के दूसरा समझ गया, लैंग्वेज का काम हो गया, बट ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट है। वही चीज है विद पेंसिल, विद पेंसिल आपको लग रहा है कि ठीक है, बट ये ठीक नहीं है, इन पेंसिल होता है ये डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 19, 16 भी आ गया, ग्रेट एग्जाम्पल सर, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 19, 16, 24,
16 देख लेते हैं। द ओल्ड मैन सफर्ड फ्रॉम हार्ट अटैक। हाँ 16 है आपका। द ओल्ड मैन सफर्ड फ्रॉम अ हार्ट अटैक। कोई अगर बीमारी है किसी को तो किस से प्रॉब्लम है ना, दिल से प्रॉब्लम है, फ्रॉम हार्ट अटैक ही होगा। फ्रॉम अ हार्ट अटैक, इट्स करेक्ट। देखिए मैं आपको जनरल सा फंडा बताता हूँ। इन प्रीपोजिशन ये तो वेल श्योर है कि 4 से 5 प्रॉब्लम एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जब भी आप प्रॉब्लम अटेंड कर रहे हैं और कुछ भी आपको ऑड लग रहा है ना, यू आर नॉट कंफर्टेबल, जो सिचुएशन आप विजुलाइज कर रहे हो कि हार्ट अटैक, द ओल्ड मैन सफर्ड बाई हार्ट अटैक होगा, इन हार्ट अटैक, अगर आप फ्रॉम अ हार्ट अटैक विजुलाइज कर पा रहे हो इट्स ओके, लीव इट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको जबरदस्ती ये रटना पड़ रहा है तो टेक अ नोट, आप इसका एक नोट ले लीजिए, कंसीडर इट एज एन एक्सेप्शन। और जब उसको थोड़े 3-4 बार आप रिवाइज करेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे। ठीक है, तो 16 में फ्रॉम अ हार्ट अटैक ही होगा। 19th द मैनेजर डिडंट टेक पार्ट इन द डिस्कशन। यस, द मैनेजर डिडंट टेक पार्ट इन द डिस्कशन। देखिए 19 पूछा था किसी ने क्या? हाँ क्वेश्चन 19 है। 19 16 हो गया, 19 के बाद 20 24। देखिए द मैनेजर डिडंट पार्ट इन द डिस्कशन, इसका मीनिंग ये है कि मैनेजर यहाँ बैठा हुआ है, ये मैनेजर है, उसके बगल में 4-5 लोग और बैठे हैं, ये डिस्कशन वाली जगह पे गया है, अटेंड किया है, उसकी बात नहीं है। द मैनेजर डिडंट टेक पार्ट इन डिस्कशन, पीपल वेर डिस्कसिंग और मैनेजर बिल्कुल साइलेंट रहा, मैनेजर ने कुछ नहीं बोला, मैनेजर वॉज देयर। तो इस सिचुएशन को विजुलाइज किया गया है, मैनेजर डिडंट पार्ट इन द डिस्कशन। और अगर मैनेजर ने ये डिस्कशन अटेंड ही ना किया होता तो मैनेजर डिडंट अटेंड द डिस्कशन होगा। एंड समवन ने कहा कि सी यू एट द डिस्कशन, अगर कोई कह रहा है कि हमें आके मिलना है आपसे डिस्कशन वाले पॉइंट पे, सी यू एट डिस्कशन, डिस्कशन होगा तब मिलेंगे हम। ठीक है, होप यू आर गेटिंग द मीनिंग। इन द डिस्कशन का मतलब है कि द पर्सन कुछ बोला नहीं, वो डिस्कशन वाज गोइंग ऑन एंड ही केप्ट साइलेंस। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। सर व्हाट इफ मीट यू एट द कॉन्फ्रेंस हॉल। सर व्हाट इफ मीट यू एट द कॉन्फ्रेंस हॉल, यहाँ पे एट होगा। क्वेश्चन 20 एंड 24। हाँ तो अच्छा है। 20 है, ही इज वेरी गुड एट टेलिंग द जोक्स, ये तो मैंने बताया था उस दिन। कोई भी स्किल है ना, कोई भी सब्जेक्ट है ना, वहां पे एट आएगा। ही इज वेरी गुड एट टेलिंग जोक्स, ही इज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज वेरी गुड एट फिजिक्स। ये एक्सेप्शन समझ के रख लीजिए, ये मुझे भी बहुत परेशान करता था। ठीक है कि एट तक कैसे होगा, लेकिन हाँ ये एक्सेप्शन नहीं है, सॉरी यहाँ पे एट होगा। गुड एट टेलिंग जोक्स। जितने भी आपको एक्सेप्शन दिख रहे हैं प्लीज कीप नोटिंग। लास्ट था 24th, किसी ने पूछा था। 24th है, देयर इज अ गुड रेस्टोरेंट एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। हाँ ठीक है, स्ट्रीट है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ऑन होगा, आप सोच सकते हैं ऑन होगा, तो ऑन का विजुलाइजेशन ये है सर, ये स्ट्रीट है इतनी चौड़ी, ठीक है, और ये मतलब ये सड़क है पूरी। अगर रेस्टोरेंट यहाँ पे है तो ये होगा एट द स्ट्रीट, और अगर आप कह रहे हैं कि ऑन द स्ट्रीट होगा तो स्ट्रीट के बीचों बीच अगर है रेस्टोरेंट। अगर आप ऑन लगा रहे हैं ना तो कोई सड़क है, थोड़ा सा मैं फिगर, आई थिंक यू आर गेटिंग, ये सड़क है ना इतनी चौड़ी, यहाँ से गाड़ी जा रही है, यहाँ से गाड़ी जा रही है, और उसके बीचों बीच कोई रेस्टोरेंट अगर है तब हम बोलेंगे कि ऑन द स्ट्रीट। ठीक है, और अगर वो अलोंग द साइड कोई है तो एट द। ठीक है, ये 6 और मैसेज आए हैं। इन द, हाँ 24 बाई, 24 में बाई क्या है?
नो, देर इज गुड रेस्टोरेंट बाई द एंड ऑफ स्ट्रीट। बाई द एंड ऑफ स्ट्रीट का मतलब होगा ये कोई स्ट्रीट है यहाँ पे खत्म हो गई और उसके बाद रेस्टोरेंट है तो लगा सकते हैं बाई द एंड ऑफ। अगर कोई रेस्टोरेंट है, ये रोड आपकी आके यहाँ पे रोड खत्म हो गई और उसके आगे है रेस्टोरेंट, तब लगा सकते हैं बाई द एंड, यानी एंड के बगल में। 21, वाई नॉट इन, ओके। 21, आई विल सी यू एट द कॉन्फ्रेंस। सी, अगर आप ये श्योर हैं कि कॉन्फ्रेंस एक क्लोज्ड रूम में हो रही है, तब आप इन लगा सकते हैं, इन द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, आई विल सी यू इन द कॉन्फ्रेंस मीन्स कॉन्फ्रेंस इज गोइंग ऑन इन साइड अ हॉल, यू आर वेरी मच श्योर एंड यू आर टोटली इन साइड ऑफ द रूम एंड दैट इज द कॉन्फ्रेंस रूम, तब आप बोलेंगे इन द कॉन्फ्रेंस होगा। इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द लोकेशन एंड प्लेस, इट मे बी अंडर ओपन स्काई, देन यू विल ऑलवेज यूज एट द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, एट थैंक्स गिविंग इज सिमिलर एज एट द पार्टी। एट थैंक्स गिविंग मतलब, थैंक्स गिविंग मतलब एक पार्टी टाइप है, एक सेरेमनी है, एट होगा। टेल वन मोर एग्जांपल लाइक 17, ओके। व्हाट इज कॉन्फ्रेंस हॉल इज मेंशन्ड। सी, कॉन्फ्रेंस हॉल इज मेंशन्ड देन पुट इन, लेकिन कॉन्फ्रेंस हॉल मेंशन या तो बाई फिगर करें, है ना, कोई एग्जांपल है जहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, वहां आपको बताया कि इन साइड है, और या तो मेंशन कर दिया है तो इन यूज करिए, गलत नहीं है। वन मोर एग्जांपल इन 17, प्लीज राइट इन पेंसिल। कुछ भी हो, प्लीज डोंट राइट इन पेंसिल, एक्सेप्शन के लिए तो फिर अभी आगे आते जाएंगे। देखिए आपके लिए मैंने कितनी सारी प्रॉब्लम लेके आई थी, यहाँ पे प्रॉब्लम है, 3 शीट लेके आया था मैं आज को, एट, बाई, फॉर, इन, ये सारा कुछ, बहुत कुछ था कराना आज आपको, बट एनी वे विल डू एज मच एज पॉसिबल। तो ऑन दिस नोट, ये जो 25 तक है ना, हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि 25 तक आपका हो गया है। 25 के आगे देखते हैं। देखो, इतने प्रैक्टिस कर लेंगे हम ना, इतने सेक्शन देख लेंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, जो जो भी इसका जो बेस्ट लेवल हो सकता है हम वहां तक जाएंगे, तो ना प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आपको बिल्कुल इतना इजी लगेगा, करे ये तो क्यों मेरे साथ खेल रहे हो यार, कुछ टफ पूछा होता, कुछ ये फीलिंग आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा थोड़ा सा आज खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 to 30 आपके साथ स्क्रीन पे है। आप सोच समझ के पहले से इनका आंसर, आप पेन और पेपर होगा आपके पास, तो 26 to 30 ये 5 आप अटेम्प्ट कर लीजिए। आपके पास 3 मिनट्स का टाइम है। उसके बाद हम पांचों का राइट आंसर बताएंगे, फिर गलत सही डिस्कस करेंगे। यू मे रेफर योर नोट्स।
Okay, hope you are done. See, need not to type here. Okay, need not to type here. Just need not to type here. Keep in mind and put on paper. आप पेन पेपर पे ही लिख के रखिए. चलिए, लेट्स सी 5 में से कितने आपने सही किए. क्वेश्चन नंबर 26. I'd like to travel to Italy next summer. ठीक है, कहीं भी ट्रेवलिंग का होगा ना तो फ्रॉम दिस प्लेस, फ्रॉम ए टू, ठीक है ना, फ्रॉम ए टू बी, ये हमेशा ये होगा फ्रॉम ए टू बी, हमें ए से बी तक जाना है. तो 26 आई वुड लाइक टू ट्रेवल टू इटली नेक्स्ट समर. ठीक है, अब आई वुड लाइक टू ट्रेवल फ्रॉम इटली नेक्स्ट समर, ये भी सही है ना. अब कौन जानता है कि हम फ्रॉम इटली से जाएंगे अगले समर में या इटली को जाएंगे, तो दोनों सही है. लाइक टू ट्रेवल, आई वुड लाइक टू ट्रेवल फ्रॉम इटली, दोनों सही है. 27th, I took a plane from Munich to Rome. took a plane, अब देखिए यहाँ दे दिया कि म्यूनिक टू रोम, ठीक है, यानी ए टू बी दे दिया, ये वाला फ्रॉम आपको यहाँ पुट करना था. आई टूक अ प्लेन फ्रॉम म्यूनिक टू रोम, तो 27th हो गया. 28, आई वुड लाइक टू स्पीक टू द मैनेजर प्लीज. स्पीक टू द मैनेजर, आई वुड लाइक टू स्पीक टू यू. ठीक है, आई लाइक टू स्पीक टू द मैनेजर. ठीक है, कहीं कहीं आप यहाँ पे अगर देखा जाए टू अगर ऑप्शन में नहीं है तो स्पीक विद द मैनेजर, तो यहाँ पे द लगा हुआ है तो विद भी यूज कर सकते हैं, विद द मैनेजर, ये भी करेक्ट होगा, विद द मैनेजर. ठीक है, सो जनरली इंडिया में यही यूज होता है, आई वुड लाइक टू स्पीक टू द मैनेजर प्लीज. तो विद का मतलब बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट फॉर्म में, प्लीज आई वुड लाइक टू स्पीक मैनेजर प्लीज. ठीक है. 28th. 29th, I don't usually feel tired in the morning. In the morning सबने सही किया होगा यार, ये तो इजी था. 30th, दो ऑप्शन डालने थे आपको. My mother is abroad, so my dad is taking care of us at the moment. My mother is abroad, मतलब ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है. Is abroad, तो टेकिंग केयर ऑफ, देखिए केयर ऑफ एक फ्रेज है, हमेशा प्लीज टेक केयर ऑफ ही यूज होता है. जैसे प्राउड ऑफ है ना, कि प्राउड के साथ हमेशा ऑफ ही यूज होता है, ऐसे ही केयर है, टेक केयर ऑफ, केयर के साथ प्राउड ऑफ, केयर ऑफ, ये हमेशा केयर के साथ ऑफ ही यूज होगा. केयर ऑफ एट द मोमेंट, मतलब अभी, एट प्रेजेंट, जैसे नहीं कहता एट प्रेजेंट क्या हाल चाल है, वेयर आर यू एट प्रेजेंट. ठीक है, तो एट प्रेजेंट या एट द मोमेंट मीनिंग दोनों का सेम है. तो 30th जो सही था मैंने बताया, अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं मैं गलत हूं वो सही था, तो प्लीज टाइप क्वेश्चन नंबर 28 अर्ली इन द मॉर्निंग सही है. हाँ, अबाउट 25th, ओके 25th नो, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आई एम ऑल रॉन्ग आंसर, कुछ समझ नहीं आ रहा है. ओके डोंट वरी, इट्स वेरी बिगिनिंग, ऑल डन करेक्टली. देखिए यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑफ स्टूडेंट्स हैं, फ्यू स्टूडेंट्स जिनके पांचों गलत हुए होंगे, फ्यू स्टूडेंट्स जिनके पांचों सही हुए होंगे, बाकी सब इन बिटवीन होंगे, 2 3 4, कोई बात नहीं है, वो सब सही हुआ. ओके, जिनका सही हुआ प्लीज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, और जिनका सब गलत हुआ वो भी टेंशन ना लें, एकदम टेंशन ना लें. प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. ये जो शीट है ना, इस पूरी शीट की आंसर सहित मैं आपको टाइप करके भेज दूंगा आज. आप आराम से, जो रूल है, जैसे मैंने आपको टेंस का नोट्स भेजा है ना आपको, तो जो टेंस के नोट्स मैंने आपको भेजे हैं, अगर किसी ने टेंस में प्रॉब्लम है, एक बार भी टेंस का रिवीजन कर लेगा अच्छे से, तो ही कैन इजिली, कोई मिस्टेक नहीं करेगा. सेम प्रीपोजिशन का है, प्रीपोजिशन का नोट्स बहुत अच्छा बना रहा हूं मैं, बहुत इजी नोट्स है. आप एक बार नोट्स पहले पढ़िए प्रीपोजिशन का, फिर जो शीट में करा रहा हूँ इसको अटेम्प्ट करिए. जिनके 5 के 5 गलत हैं वो सब 5 सही करेंगे. ठीक है,
तो 30th क्वेश्चन था, माई मदर इज अब्रॉड, केयर ऑफ मैंने बता दिया ना, केयर ऑफ ही होगा, एंड एट प्रेजेंट एट द मोमेंट होगा। ठीक है, नाउ प्लीज अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 31 टू 35, या 30 से 40 तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको देता हूँ नेक्स्ट, इट्स 5:09, 5:15 पे मिलेंगे, 6 मिनट, एंड इन 6 मिनट में आप आराम से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए फ्रॉम 30 टू 40। अच्छा 1 मिनट, प्लीज प्लीज 1 मिनट हो जाओ। जिन लोग कंफ्यूज है ना कि समझ में नहीं आ रहा है, वो एक के बजाय दो ऑप्शन रख लें। ठीक है, कि अगर आपको लग रहा है कि इन भी होगा एट भी होगा, इन दो में से एक ही होगा, तो ब्रैकेट में इन एट दोनों लिख लें। इन भी हो सकता है मेरे हिसाब से, ऐड हो रहा है, इन दो में मैं कंफ्यूज हूँ, तो उससे इजी होगा कि एलिमिनेट करने में, है ना। अगर दो यहाँ पे इज इन होगा ऐड होगा, अगर दो में प्रॉब्लम है तो ये कर सकते हैं आप।
होप यू आर डन। ठीक है, डन डन डन, 50 डन, थैंक यू। सो देखिए, ये थोड़े से क्वेश्चन ऐसे अरेंज हैं कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे क्वेश्चन का लेवल टफ होता जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो डोंट वरी, ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। देखिए, सबने सबने 31 में इन लगा दिया होगा, व्हाट आई प्रिज्यूम कि अगेन द लैपटॉप इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम बट वी विल कंटिन्यू। 31 में सबने इन लगा दिया होगा, सोनिया गेट्स इन द 7 o'clock बस इन द मॉर्निंग, व्हाट आई प्रिज्यूम, बट दिस इज नॉट द राइट वन। इन द मॉर्निंग तो यहाँ लगा ही हुआ है, इन द मॉर्निंग। जो प्रिपोजिशन आप यहाँ पे लगाएंगे ना, जो प्रिपोजिशन आप यहाँ पे यूज करेंगे, दिस प्रिपोजिशन इज रिलेटेड टू बस, नॉट द टाइम। ठीक है, सो करेक्ट वन इज सोंजा गेट्स ऑन द 7 o'clock बस इन द मॉर्निंग। ये टफ है, गेट्स ऑन होगा यहाँ पे, गेट्स ऑन द 7 o'clock बस इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग तो ठीक है, बट यहाँ का जो प्रिपोजिशन है ना, उसका इफेक्ट बस से रिलेटेड है, तो ऑन द बस। बस को कब उसने किया, अगर जब गलत हुआ है डोंट वरी, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन था। 32nd, सी ऑलवेज लुक्स एट हरसेल्फ इन द मिरर। लुक एट योर सेल्फ, ये भी लुक के साथ हमेशा एट ही आता है, ठीक है ना। तो दोज हु आर नॉट फेमिलियर विद लुक ऑलवेज लुक एट, या लुक इनटू भी होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, लुक इनटू का। जनरली हम जब कोई ईमेल लिखते हैं या किसी को रिमाइंडर भेजते हैं, तो उसमें होता है प्लीज लुक इनटू दिस, या प्लीज लुक इनटू द मैटर, तो कृपया मामले को देख लें। लुक इनटू दिस, ठीक है, मैटर को देख लीजिए, लुक इनटू दिस मैटर, लुक इनटू दैट मैटर। व्हेन से लुक एट, तो मामले को नहीं, खुद को देखना होता है। समहाउ मिरर की इमेज आनी चाहिए, लुक एट योर सेल्फ, अरे अपने आप को देखो।
ठीक है। तो लुक एट और लुक इनटू, इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जब कंपैरिजन की बात हो या खुद को देखने की बात हो, एक मिरर इमेज टाइप का कुछ हो, तो एट यूज करेंगे। और जब कोई मामले को, मैटर को देखना हो, तो लुक इनटू द मैटर। ठीक है। वो ये वाला क्लियर होगा। 32nd। थर्ड, आई मेट डोना एट अ पार्टी ऑन फ्राइडे नाइट। यार ये तो कोई गलत मत करना। ठीक है। अगर जिसने ये गलत किया उसके लिए तो थोड़ी सी लग रहा है कि बहुत बेसिक की जरूरत है। ठीक है। आई मेट डोना एट अ पार्टी। अगेन वही बात है कि पार्टी खुले आकाश की। अब आप इन द पार्टी कुछ लोग कर दिए होंगे, इन अ पार्टी। तो इन अ पार्टी तब करेक्ट होगा जब पार्टी इज अगेन लाइक कॉन्फ्रेंस हॉल, एक बैंक्वेट हॉल हो, कवर्ड हो, होटल में हो, और तब वहां आप जाके मिले किसी से इन द रूम, तो कह सकते हैं कि इन द पार्टी। बट व्हेन जनरली एक पार्टी है तो पार्टी कहीं भी हो सकती है, तो करेक्ट प्रीपोजिशन इज एट। आई मेट डोना एट अ पार्टी ऑन फ्राइडे नाइट। 34th, माई फ्रेंड ऑलवेज बारोज मनी फ्रॉम मी। मुझसे पैसे लेता है। तो वही फ्रॉम टू, जैसे होता है ना कि फ्रॉम लंदन टू पेरिस, फ्रॉम टू, तो मनी बारोड फ्रॉम टू वाला रिलेशन है यहाँ पे। ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, Daria's book are lying on the floor। फ्लोर के साथ हमेशा ऑन द फ्लोर, क्योंकि ये आपका फ्लोर है। फ्लोर तो पूरा बहुत बड़ा होगा, फ्लोर के नीचे आप जा नहीं सकते, फ्लोर के ऊपर ही रहेंगे। पार्टी ऑन द फ्लोर, कोई गाना भी है ना, पार्टी ऑन द फ्लोर टाइप का कुछ। ठीक है। तो वही है, Daria's books are lying on the floor। तो सबने सही किया होगा आपको। 36, he arrived at the school building just in time। जस्ट इन टाइम, ये जो जस्ट लिखा ना, उसकी वजह से लग रहा है कि बिल्कुल अभी अभी आया है, तो इन टाइम होगा। और अगर हम किसी को कह रहे हैं कि प्लीज बी ऑन टाइम, अगर हम इसे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही समय पे मिलना, प्लीज कम टुमारो ऑन टाइम, मतलब प्लीज बी ऑन टाइम, आप सही समय पे आना, अगर ये फ्यूचर की बात हो। ही अराइव्ड एट द स्कूल बिल्डिंग, जस्ट की वजह से हमें ऑन ना करके इन करेंगे, जस्ट इन टाइम, मतलब बिल्कुल विद इन, तुरंत आ गया। 32nd, the audience threw tomato at him। ठीक है। अब देखो विजुलाइज करना, अगर आप जब तक नहीं सीखेंगे, यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स होती रहेंगी प्रीपोजिशन। उसके लिए प्रैक्टिस ही एक रास्ता है। टोमेटो थ्रो किया गया है किसी के ऊपर, विजुलाइज करिए कैसे किया गया होगा। मान लीजिए वो बंदा है जिसके ऊपर आप टोमेटो थ्रो कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ से टोमेटो आपने थ्रो किया, तो जो भी आपका प्रीपोजिशन है वो बताएगा। अगर टोमेटो आपने बिल्कुल इसके सर पे फेंका, एकदम यहाँ के गिरा, ठीक है, तो ऑन यूज होगा। ऑन जैसे ऑन द फ्लोर वाला फीलिंग है, ऑन द फ्लोर, बिल्कुल सर पे गिरा है, दाहिने बाएं नहीं आया है, तो ऑन होगा। द ऑडियंस थ्रू टोमेटो ऑन हिम। ठीक है। आपने टोमेटो ऐसे थ्रो किया कि उसका जो भी जैकेट है, शर्ट है, उसके अंदर चला गया। ठीक है, इन हिम हो जाएगा। और जब बिल्कुल साइड से आके ऐसे कहीं से, तो उसकी जगह एट हिम होगा। ठीक है, ये एट है। 38, passengers are not allowed to use cell phones on airplanes। ऑन एयरप्लेन्स, यहाँ पे आप कहेंगे कि इन एयरप्लेन क्यों नहीं होगा। ठीक है, इन एयरप्लेन्स भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है।
तो पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू यूज सेल फोन्स ऑन द एयरप्लेन्स। अब जैसे ऑन द बस हम करते हैं, ऑन द बस, तो ऐसा नहीं हो कि बस के हम बिल्कुल टॉप रूफ पे चढ़ के आएंगे, ठीक है। ऑन द एयरप्लेन या इनसाइड द एयरप्लेन या इन एयरप्लेन, दोनों करेक्ट है। 39, he is responsible for what he does, he is responsible for what he does. And last, I'm sorry about the job you didn't get, I'm sorry about, ठीक है, आई एम सॉरी अबाउट। ये थोड़े डिफिकल्ट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको बाद में कराना चाहिए था आपको, इजी वाले पहले कराने से कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हो जाता आपका। नाउ इन 10 में लेट्स सी क्या आपका क्वेरी है, क्या रिस्पॉन्स है। इफ वी पुट 2, 32 में 2 लगा रहे हो आप। सी ऑलवेज 32 ना, शी ऑलवेज लुक्स टू हर सेल्फ, नहीं, लुक्स टू अदर हो सकता है, लुक, लेकिन अदर भी नहीं होगा, लुक एट ही होगा यहाँ पे, यहाँ पे लुक एट ही होगा। 40, 40, 44, 40 में फॉर यूज कर रहे हो आप। आई एम सॉरी, नो नो, आई एम सॉरी अबाउट, आई एम सॉरी अबाउट, फॉर नहीं होगा, आई एम सॉरी अबाउट द जॉब यू डिडंट गेट, तो यहाँ पे अबाउट ही होगा। चलिए नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं। देखिए एक तो ये है ना कि जो लोग इसके टॉप में लिखा था कि कौन कौन प्रिपोजिशन आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एट रैंडम आप प्रिपोजिशन लगा रहे हैं। अगर मैं 4 ऑप्शन दे दूं तो शायद आप कुछ बेटर पोजीशन में होंगे। तो ऐसा करते हैं, हम बता देते हैं आपको कि 40 से 50 के जो क्वेश्चंस हैं उनमें कौन कौन से प्रिपोजिशन आपको लगाने हैं, ठीक है। एट, ऑन, अप, ठीक है। सो एट, ऑन, फॉर, विद, फॉर, विद, इन, बस इतने ही, 3, 3, 6, इन 6 प्रिपोजिशंस में ही आपको लगाने हैं। एलिमिनेट करके भी जरा ट्राई करिए, देखिए शायद कुछ बेटर रिजल्ट आए। 41 टू 50,
Those who are done, please just thumbs up. Okay, all done, all done. Okay, very good. चलिए, let's do. And honestly, I am giving you one more minute. if वो कुछ है लैग कर रहे हैं कुछ लोग, प्लीज ऑनेस्टली रिलीजियसली आप ट्राई करिए, इसमें क्या फिट होगा, कौन सा बिल्कुल नहीं फिट होगा, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, उसको एलिमिनेट करिए। फिर एक दो, जिन लोगों को दो में कंफ्यूजन है, बगल में दोनों रखिए, है ना, जो आपको कंफ्यूज कर रहा है वो दोनों ऑप्शन रखिए, और फिर लास्ट में आप सोचिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो होप ऑल डन। हाँ ठीक है, डन हो गया, आपने कर लिया, ठीक है। Guys, one more important issue. Before that, मैं इसका सोल्यूशन कराऊँ, एक आप लोगों से एक सजेशन लेना है, आप लोगों से एक परमिशन लेनी है बेसिकली मुझे। एंड परमिशन इज दैट मॉर्निंग क्लास इज अनाउंस्ड फ्रॉम 7 to 9, 7 o'clock to 9 o'clock, राइट। डिपेंडिंग माई हेल्थ की मुझे लगता है कि आई विल टेक रेस्ट इन अर्ली मॉर्निंग, सो प्लीज सजेस्ट मी अनदर टाइम स्लॉट वेयर आई कैन टेक जीके क्लासेस a bit later। तो अगर आप अलाउ करें मुझे, इफ यू अलाउ, तो हम 10 to 12 रख लें, या सजेस्ट मी एनी अदर टाइम इफ इट्स कन्वीनियंट टू यू। 7 9 is too early, that's why 9 11, okay, 9 11, 10 to 12, 9 11, 10 to 12, 9 11, 9 11, that means you are comfortable ना between 8 to 9 के बीच में ये। We have also another class 7, okay, 10 to 12, 11 to 1, 9 11, 9 11 से तो फिर वो अमेरिका वाला अटैक याद आ जाता है। 9 11, डोंट यूज ए कोड वर्ड होना, 7 to 9, 7 to 9, ठीक है, मतलब आला कंफर्टेबल की चेंज हो जाए। ठीक है, गॉट इट, प्लीज प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप, प्लीज डोंट डोंट डोंट, प्लीज स्टॉप, प्लीज प्लीज स्टॉप, प्लीज। इवनिंग क्लास विल सेम 4 to 6 इवनिंग रहेगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंफर्टेबल, दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल प्लीज डू टेक्स्ट। जो 7 to 9 पहले होता था, अगर हम 9 to 11 कर लें, या 8:30 to 10:30 कर लें, दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल प्लीज डू टेक्स्ट, दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल विद 9 11। सर व्हाट अबाउट नाइट टाइम, अरे नाइट टाइम नहीं, 8 to 10 ना, ठीक है, 8 to 10, 10 to 2 माई ओन क्लास, ठीक है, 7 to 9 इज ऑल राइट, आई हैव टू वर्क ऑन 10, ठीक है, जिसको काम करना है 10 o'clock से, तो हम 8 to 10 रख रहे हैं। 8 to 10 में किसको प्रॉब्लम है? 8 to 10 में, जब तक लॉकडाउन है, विद इन 4-5 डे आई विल रिकवर, ओके, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, विद इन 4-5 वीक व्हेन आई रिकवर देन 7 o'clock, ओके, ठीक है। सो लास्ट अनाउंसमेंट्स, टुमारो ऑनवर्ड्स क्लास टाइमिंग वुड बी 8 to 10 एंड 4 to 6, ठीक है। अगर किसी को 8 to 10 में बहुत प्रॉब्लम है, या वो कांट मैनेज, ऑफिस है, कुछ है, तो रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल, आप जो भी टाइम कर लेंगे। हाँ, 8 to 10 ऑसम, फाइनल कर दो, बिल्कुल आपने कहा और हम ना करें। 8 to 10 बरोबर, बरोबर, बरोबर बेसिकली मुंबई में बोलते हैं, बरोबर मराठी वर्ड है बरोबर। तो जब तक लॉकडाउन है, या जब तक मुझे कुछ डाउट है कि वेदर इट्स कोरोना और समथिंग एल्स, 8 to 10 रखते हैं। एंड जब आपका ऑफिस हो जाएगा, या कुछ अदर एंगेजमेंट होगी, फिर विल चेंज द टाइम। तो टिल दिस वीक, है ना, आज आपका 12th है ना, सैटरडे तक टाइम ये होगी, मॉर्निंग क्लास 8 to 10 एंड इवनिंग क्लास 4 to 6, दैट्स डन। ओके, पैरासीटामॉल खाया सर, हाँ बिल्कुल। पैरासीटामॉल, दिस, आई एम वेरी श्योर कि अगर आप लोग क्लासरूम में होते ना, फिजिकल क्लासरूम होता, हम और आप आमने सामने होते, तो कितना अच्छा रहता। सर इवनिंग 4:30 to 6:30 कैन बी, please end the topic as soon as possible, okay, the topic is end here. Tomorrow's class 8 to 10, evening class 4 to 6. Now come to questions। 41 question,
आई एम वेरी बैड एट मैथमेटिक्स। यार ये गलत मत करना कोई, वरना मेरा दिल टूट जाएगा अगर इसने गलत किया तो। मैं पक्का कोरोना आ जाएगा अगर ये गलत हुआ होगा किसी का तो। ठीक है, तो 41 आई एम वेरी बैड एट मैथमेटिक्स। 42nd, ये 42nd मुझे पता है गलत किया होगा कुछ लोगों ने। वी हैड टू क्लाइंब स्लोली द हिल। देखो, हिल इज लाइक दैट। ठीक है, ये हिल है आपकी, यहाँ पे कोई है। अब ये धीरे धीरे क्लाइंब करेगा तो यहाँ चलेगा, यहाँ से यहाँ चलेगा, ये है सिनेरियो। ठीक है ना। तो जिन लोगों ने कहा है कि ऑन द हिल होगा वो कंप्लीटली गलत है, क्योंकि जब आप ऑन द हिल के टॉप पे पहुंच जाओगे ना और फिर वहां से क्लाइंब करोगे तो फिर बिना कोरोना के ही खत्म हो जाएगा काम। ठीक है, तो करेक्ट 42nd का करेक्ट है अप। ठीक है, तो 42nd का है वी हैड टू क्लाइंब स्लोली अप द हिल्स। और अगर आप नीचे आ रहे हैं तो डाउन द हिल्स, यू आर कमिंग डाउन द हिल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रपोजिशन। ऑन का मतलब है कि आप समझ लीजिए ऑन में तो खतरा है। तो 42nd का करेक्ट है अप द हिल। 43rd, ही इज ऑलवेज ऑन टाइम। ठीक है ना। अभी एग्जांपल मैंने जब इन जस्ट इन टाइम का किया था तो बताया था ऑन द टाइम, तो ही इज ऑलवेज ऑन टाइम सही होगा आपका। 44th, हाउ मेनी पीपल आर इन योर टीम। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर टीम। हालांकि अगर करेक्ट देखा जाए तो उसका ये होगा हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर टीम। ठीक है। अ यूनिवर्सिटी इज वेयर यू स्टडी फॉर अ डिग्री। एक डिग्री के लिए ही आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, नौकरी के लिए यू कम टू कोचिंग। अ यूनिवर्सिटी इज वेयर यू स्टडी फॉर अ डिग्री, full stop. A coaching is a place where you study for a job. ठीक है। 46, her next birthday will be on a Sunday। ठीक है, संडे, संडे कोई होगा फिक्स नहीं है तो ऑन ए संडे। 47th, the new factory is expected to go online in May। तो मंथ में इन लगाएंगे तो बता ही चुका हूँ आपको, मंथ ईयर सब में इन लगेगा। मेनी ऑफ अस ईट, देखिए ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, पूछता है ये। मेनी ऑफ अस ईट विथ फॉर्क एंड स्पून। जब भी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसके साथ हम खाना खाते हैं ना, ईट विद होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में बाई था नहीं जो आपको कंफ्यूज करता, लेकिन रियल रियल एग्जाम में पक्का ऑप्शन बाई देगा कंफ्यूज करने के लिए। बाई फॉर्क एंड स्पून। ठीक है, नहीं, विद फॉर्क एंड स्पून। 49th, we have been searching for a web designer for a few weeks now। सर्चिंग फॉर, कुछ भी आप सर्च करो ना, यू आर सर्चिंग फॉर ए राइट पर्सन, आई एम सर्चिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर ए राइट पर्सन। आजकल दोज हु आर, जिनकी शादी बहुत लेट हो रही है तो अगर आप पूछो वाई आर सो लेट, आई एम लुकिंग फॉर ए राइट पर्सन, करते करते उनका टाइम ही रॉन्ग हो जाता है, इतना लेट हो जाता है। एनीवे, लास्ट है 50th, द टीवी इज। अब देखो टेलीविजन से रिलेटेड जो होता है ना, टेलीविजन वाला भी कंफ्यूज करता है। विजुलाइज करो, टेलीविजन देख रहे हो, टेलीविजन रखा है। ठीक है, तो टीवी इज, अभी टीवी कहीं पे रखा हुआ है ना, द कॉर्नर ऑफ द रूम, तो टीवी इज इन द कॉर्नर ऑफ रूम। ये फर्क नहीं पड़ता कि टीवी है या कुछ और है। द रेफ्रिजरेटर इज इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। ठीक है, एक्स वाई जेड इज इन द कॉर्नर ऑफ रूम। अनटिल अनलेस यू आर वाचिंग टीवी, अगर आप टीवी देख रहे हो, कुछ सीरियल चल रहा है तो डिफरेंट पोजीशन आता है।
something is something is at place then in the corner of row. तो ये 10 क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चंस में क्या कोई ऐसा है जिसका एक भी सही नहीं है? अगर ऐसा है तो उसके लिए आई हैव टू अरेंज अनदर सेशन। 50 में ऐड टीवी यू अब कहाँ से आया? ठीक है, ऐड द कॉर्नर 50 में ऐड होगा। 50 एक्सप्लेन अप इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन। 50 ऐड, अच्छा 9 करेक्ट हो, वेरी गुड वेरी गुड सर। कॉर्नर इज अ प्लेस वाई इन 40, हाँ ठीक है, समझ गया समझ गया, ठीक है। अच्छा 44 एक नया आया है, 44 हाउ मेनी पीपल आर, हाउ मेनी पीपल आपने क्या लिखा है जरा 44 का बताइए। हाउ मेनी पीपल आर ऑन योर टीम? देखो 100% करेक्ट वाले ना अगर झूठ बोल रहे हो तो जान लो कौवा काटेगा। ओके 41 43 रिपीट प्लीज। ओके ऑल करेक्ट, कुछ लोग ऑल करेक्ट कर रहे हैं ना, प्लीज ओके ठीक है, सारा कर देते हैं, डोंट वरी। 40 आई एम सॉरी अबाउट द जॉब। अच्छा 40 तो हो गया था ना, 41 आई एम बैड एट मैथमेटिक्स करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो अब अभी भी लिखा हुआ है, मैंने अभी नहीं लिखा है, अब मैंने जानबूझ के लिखा था कि कुछ लोग यूज करेंगे विजुलाइज करेंगे। हाँ मैंने बताया नहीं है अप डाउन का, मैंने थियरी सेक्शन में नहीं बताया है तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से पूछ लिया। बट थिंग इज कि जब भी माउंटेन या कुछ ऐसी चीज होती है ना, बताया कि ना आपने अगर आप चढ़ रहे हो माउंटेन पे स्पेसिफिकली तो एक जंप दो जंप यू आर गोइंग अप साइड, ऐसा कुछ जंप कर रहे हो तो अप है, और नीचे आ रहे हो तो डाउन है, ऑन होगा कि टॉप पे बिल्कुल, ठीक है। तो अभी ऐसे बहुत अप डाउन वाले भी बहुत एग्जांपल हम करेंगे आगे, डोंट वरी। 43 ठीक है। 44 हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर टीम? हाउ मेनी पीपल आर इन योर टीम? हाउ मेनी पीपल आर ऑन योर टीम? ऑन भी फिट लग रहा है लेकिन इन ही ठीक होगा मेरे ख्याल से, है ना। हाउ मेनी पीपल इन, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर टीम? अगर इसको बिल्कुल करेक्ट पूछो जो मुझे सीन्स कर रहा है, हाउ मेनी पीपल आर देयर, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर टीम? 45 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 46 सिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 में कोई, 8 विद फॉर्क एंड स्पून प्लीज नोट डाउन, विद फॉर्क एंड स्पून होगा, आप गलती मत करना। और जो लोग एट टीवी कह रहे हैं ना, टीवी इज इन द कॉर्नर, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ठीक है। एक रूम है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है रूम है, रूम का मतलब रूम है तो छत भी होगी, अगर जब तक छत नहीं होगी उसको रूम नहीं बोलेंगे, है ना, उसको ओपन ही बोलेंगे। ये ये रूम है अगर सपोज, और टीवी समथिंग इज हियर, ये आपका टीवी रखा हुआ है। तो मैंने पहले बताया कि टीवी है, फ्रिज है, एक्स वाई जेड इज इन कॉर्नर में रखा हुआ है, तो उसकी लोकेशन कहाँ पे है? इन द रूम, इन द रूम के कॉर्नर में है, तो कॉर्नर में है। टीवी इज इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। टीवी इज एट द कॉर्नर ऑफ रूम नहीं, एट तब यूज होता है व्हेन यू आर वाचिंग टीवी और यू आर वाचिंग ऑन टेलीविजन, ऑन होता है टेलीविजन जब आप देखते हैं, या यू आर लुकिंग एट टेलीविजन, आप टेलीविजन को देख रहे हो, या टेलीविजन की जगह सपोज यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, तो यू आर लुकिंग एट रेफ्रिजरेटर, आप किसी की तरफ देख रहे हो ना, लुकिंग एट। टीवी इज इन द कॉर्नर, लोकेशन बता रहा है कि डायरेक्शन बता रहा है कि इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, क्योंकि रूम पूरा तरह से ये आपका कवर्ड है। अगर टीवी इज द कॉर्नर ऑफ रूम की जगह टीवी इज डैश द फ्लोर होता, कॉर्नर ऑफ द रूम की जगह टीवी इज द फ्लोर, तो इसका होता टीवी इज ऑन द फ्लोर, ठीक है। टीवी इज ऑन द फ्लोर, ये टीवी चल नहीं रहा है, टीवी इज नॉट ऑन इट, पैक्ड है, बस वो टेलीविजन है। इंस्टेड ऑफ टेलीविजन आप कोई भी ऑब्जेक्ट यू कैन इमेजिन, राइट। तो टीवी इज इन द कॉर्नर, कोने में रखा हुआ है, ठीक है। तो
Still, is there any query? TV is up the corner of the room. Don't, please don't joke. The TV at the corner in the room. अरे क्यों इतना मतलब? Inside a room, we are taking about a specific location, sir. Inside a room, we are taking. हाँ, inside room तो है ही है वो. अगर सिर्फ रूम होता, टीवी इज इन द रूम, टेलीविजन इज इन द रूम, करेक्ट है. बट ये कॉर्नर मेंशन किया है, कॉर्नर से आपको डायरेक्शन मिलेगी, इन द कॉर्नर ऑफ द. ठीक है. तो ये 50 क्वेश्चंस हैं. नाउ ये 50 लास्ट थोड़े टफ हो गए थे. अब हमारे पास सफिशिएंट टाइम है 15 मिनट. एंड इन नेक्स्ट 15 मिनट प्लीज देखो, पहले कहीं लिख लो. आपको सिर्फ ये पांच प्रीपोजिशन ही यूज करने हैं. अप डाउन का कोई चक्कर नहीं है. एट, बाय, फॉर, इन, ऑन, ये पांचों मैं करा चुका हूं. ठीक है. एंड देयर आर 20 क्वेश्चंस. सो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस प्लीज, एंड आई एम श्योर कि ये आप सही करेंगे, या क्योंकि ये कराया गया है. 5:46 sharp, 5:52 पे विल स्टार्ट डिस्कशन. सो प्लीज दोस्त हु कुडंट नोट डाउन, प्लीज आप नोट कर लीजिए. ये यही चार प्रीपोजिशन है जो आपको लगाना है. एट, बाय, फॉर, इन, ऑन. प्लीज ट्राई 10 क्वेश्चंस.
Hope you are done. Please do message if you are done. सॉल्व डन, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है चलिए। चलिए, आउट ऑफ 10 कितना सही हुआ, सही सही बताना है ना। देखिए पहला ही कंफ्यूजिंग है, पहला ही कंफ्यूजिंग है, दो दो सही होगा डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग। पहला है शी वॉज डैश यूनिवर्सिटी व्हेन शी हर्ड अबाउट द डेथ ऑफ हर फादर। इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। पहला कि देयर इज अ गर्ल, शी हर्ड अबाउट द डेथ ऑफ हर फादर। Now, when she heard she was in school or in university or in job, इस रिलेशन में अगर है तो she was in university when she heard about the death of her father। ठीक है, तब इन लगेगा। अगर बात इस सेंस में हो रही है कि वो स्कूल में थी या उस टाइम पे क्या उसकी प्रोफाइल थी। अनदर मीनिंग इसका ये है कि अभी मतलब द मोमेंट शी हर्ड द न्यूज, then she was at university when she heard about the death of her father। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि जैसे अभी उसने सुना है, एंड द करेक्ट होगा एट, एट यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर आप इन यूनिवर्सिटी कर रहे हो, इन यूनिवर्सिटी, उसका मतलब है वो स्कूल में थी, कॉलेज में थी, यूनिवर्सिटी में थी, व्हाट शी वाज डूइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन शी हर्ड द न्यूज़। ठीक है, ये है, दिस इज और विजुअलाइजेशन। अगर आप ये कर रहे हो कि कोई यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है उसके अंदर हो रही होगी, तो ये गलत है। अगर आप एट प्रेजेंट यूनिवर्सिटी में हैं तो ऑलवेज आप कहेंगे आई एम एट यूनिवर्सिटी, आई एम एट यूनिवर्सिटी, आई एम एट ऑफिस। भले आपका ऑफिस एक बंद कमरे में है, लेकिन आप एट यूनिवर्सिटी, एट ऑफिस यूज करेंगे। ठीक है, ये एट वाला कंफ्यूज करता है, ऑफिस वाला, यूनिवर्सिटी वाला, एट प्लेटफॉर्म, एट बस स्टॉप, ये सारा। बिकॉज कि यूनिवर्सिटी के अंदर हो ये जरूरी नहीं है, इट शोज दैट यूर प्लेस कॉल्ड यूनिवर्सिटी, आप उसके नियर बाई भी हैं, तो एट होगा, पहला एट है। सेकंड, वी यूजली गो ऑन हॉलीडेज बाई प्लेन, हॉलीडेज, go on holidays by plane, but this year we are going to Italy by a car। ठीक है ना, तो ये बाई यहाँ पे लिखा था, आपने किया होगा सही। लेट्स गो फॉर अ वॉक, ये तो सबने सही किया होगा। द वेदर इज सो ग्रेट, लेट्स गो फॉर अ वॉक। फोर्थ, द ट्रेन वॉज ट्रेवलिंग at a speed of 150 km/h, at a speed। ठीक है, द ट्रेन वॉज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ, अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा एट द रेट ऑफ। एट द रेट ऑफ, कोई चीज आप खरीदने जा रहे हो ना, एट द रेट ऑफ, या जो ये साइन आप बनता है आपके लैपटॉप में, ये एट द रेट ऑफ, वही है एट द रेट, एट द स्पीड ऑफ, उसी से मिलता जुलता। फिफ्थ, शी गॉट ऑन द बस, शी गॉट ऑन द बस एट ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट एंड गॉट ऑफ 5 स्टॉप्स लेटर। तो ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ये डबल एफ वाला, जब भी बस पे आप ज्वाइन करेंगे ऑन द बस, जब भी बस से नीचे आएंगे ऑफ, या समटाइम गेट डाउन, आई गेट डाउन आफ्टर 5 स्टॉप, या गेट गॉट ऑफ, ऑन ऑफ ये दोनों होगा। देखिए डिस्पाइट और इंस्पाइट का यूज मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ये आगे पढ़ाऊंगा ये, बट यहाँ पर उसका यूज है नहीं। सिक्स्थ, डिस्पाइट द बैड वेदर ऑल ट्रेन्स आर रनिंग ऑन टाइम। ठीक है, सर मैंने बताया था ना कि बी ऑन द टाइम, सही टाइम पे आना।
तो रनिंग ऑन द टाइम, ऑन टाइम है, सही है, लेट नहीं है। और अगर कुछ लेट होता है, दिस ट्रेन इज डिलेड बाई 2 आवर, बाई 4 आवर, ऐसा अनाउंसमेंट आपने सुना होगा रेलवे स्टेशन वगैरह पे, वहां से बाई लेट होता है तो ये करते हैं। सेवेंथ, bats are mammals that are highly active at night, not in night, at night। जनरली हिंदी में तो लगा रात में, लेकिन नहीं, एट नाइट हुआ, एट मॉर्निंग, एट नाइट, एट डिनर, एट द मोमेंट, तो एट द नाइट, एट नाइट। एट्थ क्वेश्चन, दिस विलेज इज नॉट इवन ऑन द मैप, ऑन द मैप, क्योंकि मैप होगा तो मैप ऐसे ना, आप मैप में ऐसे कुछ पॉइंट बनाओगे, विलेज है तो मैप के बिल्कुल से ऑन द फ्लोर होगा, वैसे ऑन द मैप। वहां से नाइन्थ, वी यूजुअली गो टू डांस क्लास ऑन मंडे, इसमें तो लिख ही दिया है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ऑन मंडे। टेंथ, डैश नाइट फॉल ओवर 10 इंचेस ऑफ स्नो हैड फॉलन बाई नाइट फॉल। देखिए अब बाई नाइट फॉल, बाई यहाँ पे भी देखो एट लगेगा नहीं, एट नाइट फॉल, फॉर लगेगा नहीं, इन लगेगा नहीं, ऑन लगेगा नहीं, तो हर मान के कौन सा फिट होता है? टेंथ ही फिट होगा। ठीक है, इन 10 क्वेश्चंस में कौन सा डिस्कशन करना है आप बताइए मुझे। 3 रॉन्ग सैडली, 9.5 करेक्ट, ओके, ऑल करेक्ट, 6 by 10, ओके, दोज हु डन 5+, दे आर मोस्ट वेलकम, दे जितने भी 5 करेक्ट किया है और बाकी 2 कंफ्यूजन था उसमें हुआ है, तो इट्स गुड, 8.5, वेरी गुड। फर्स्ट वन वी कैन बोथ अटेंड, एट एंड इन। हाँ, एट और इन दोनों होगा मैंने, लेकिन दोनों अलग अलग मीनिंग बताई आपको, एट कब होगा, इन कब होगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सो एट द सेम टाइम जो भी आपको ऑड लगे, कीप मेकिंग नोट्स। नेक्स्ट 10, 20, चलो फटाफट करो, उसके बाद आज छोड़ देंगे आपको।
ओके, डन डन डन। ठीक है, चलो लेट्स सी। 11th, doctors hope that the spread of the virus will slow down in the summer. ऐसा ही it was said last year in March that in coming summer the corona would be gone, but unfortunately it survived not in summer but then anyway. 12th, the dad always reads stories. ये दो कंफ्यूजन कर रहा था तो मैंने डार्क कर दिया है। Dad always reads stories in the evening. ठीक है, in the evening. 13th, let's meet at noon. Let's meet at noon. We can have lunch and sort things out. Okay. 14, the cat was playing with a ball in the corner of Michelle's room. In the corner. ठीक है, पिछले टीवी वॉज इन द कॉर्नर था, ये भी है इन द कॉर्नर। 15th, शी हैज बीन अ मेंबर ऑफ द कमिटी फॉर 6 years. 6 साल से वो कमेटी की मेंबर है। और कोई स्पेसिफिक टाइम क्या होता, शी हैज बीन अ मेंबर ऑफ कमिटी सिंस 2010 लाइक दैट। तो सिंस होता अगर स्पेसिफिक ईयर या डेट या चाइल्डहुड ऐसा कुछ मेंशन होता, सिंस चाइल्डहुड और समथिंग। 16th, what are we having for dinner today? खाने के लिए आज क्या है? 17th, average the unemployment rate has been going up 1% on an average. ठीक है, on average the unemployment rate है ना, on an average इतना ही होगा। 18, take a seat, I will be with you in a minute. I'll with you in a minute और within a minute दोनों सही है। 19, we decided to meet at the station. मैंने कहा ना, स्टेशन में हमेशा एट लगेगा, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टेशन हो, चाहे प्लेन स्टेशन हो, व्हाटसएवर एयरपोर्ट हो। द बॉस वुड लाइक टू हैव द रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे एट द लेटेस्ट। बाय जब कोई लिमिट दी होती है, व्हेन देयर इज अ लिमिट देन बाय द एंड ऑफ। तो ये 10 क्वेश्चंस थे। जरा अपने स्कोर बताइए और कोई डिस्कशन चाहिए तो वो बताइए। 8, 10, very good, very good. 8, 7, all correct, very good. ठीक है, ठीक है, ठीक है। Those who are 5 plus, please do practice slowly, slowly. You will improve. You will get 6 right, 7 right, 8 right, and 9 right. Okay. हाँ, अच्छा डिस्कशन कौन सा करना है? एक का बाई क्यों नहीं हुआ सर? वन का, वन का बाई क्यों नहीं हुआ सर? क्वेश्चन नंबर बोलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17 एट एन, नहीं एट एन एवरेज नहीं होता 17, नो। 17 में हमेशा ऑन एन एवरेज होता है। जब भी आप बात भी करते हैं ना, ऑन एवरेज ही करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेज, ऑन एवरेज जितना ही होगा, क्या रेट है या फिर क्या है, ऑन एवरेज, ऑन एन एवरेज। ये तो सेशन टाइप या फ्रेज टाइप है, रट लेना, नोट लेना, ऑन एन एवरेज होगा। हालांकि यहाँ पे एन नहीं लिखा है, ऑन एवरेज लिखा है, ऑन एन एवरेज भी कहीं कहीं लिखा होता है। ठीक है। 20, वाई नॉट एट? 20 में एट क्यों नहीं होगा? The boss would like to have the report by, सी ये एक डेडलाइन है ना, कि बॉस को रिपोर्ट शाम तक चाहिए। ठीक है, अब देखो बॉस से रिलेटेड शाम तक चाहिए, एक डेडलाइन है, लेटेस्ट यानी बाय द एंड ऑफ द डे। ठीक है, बॉस कहता है कि रिपोर्ट शुड ऑन टेबल, इट शुड बी ऑन टेबल।
अगर रिपोर्ट होता ऑन टेबल चाहिए, तब द बॉस वुड लाइक टू हैव रिपोर्ट ऑन टेबल बाय द एंड ऑफ द डे एट द लेटेस्ट। तो बाय वो डेडलाइन सेट कर रहा है ना, कि लिमिट है बाय दिस टाइम, प्लीज रीच या ज्वाइन द एकेडमी बाय 18। जब आप 18 साल के होते हैं इससे पहले एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो बाय ये लगेगा बिकॉज टाइम लाइन है इसकी। बाई का आप रिकॉल करो मेरा फर्स्ट सेशन, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि बाई द स्कूल, बाई द विंडो, बाई ड्यू डेट, बाई ड्यू टाइम। फर्स्ट वाला लेक्चर आप देखना, परसों वाला, उसमें बाई द ड्यू डेट मैंने कराया है। सो गाइस, दिस वाज द सेशन एंड अनाउंसमेंट इज दैट टुमारोज। अच्छा, कुछ और भी है क्या? मैथ्स मैथ मन हो गया, मैथ्स पढ़ना मन हो गया। 16 व्हाई नॉट 8 से 8 तो लंच होता है, ठीक है। फॉर ये पूछ रहा है कि डिनर में खाने के लिए क्या है, कंटेंट क्या है डिनर का। व्हाट आर वी हैविंग फॉर डिनर टुडे, खाने के लिए क्या है, ठीक है। खाने के लिए क्या है, डिनर पे मिलने की बात होती तो एट डिनर होता, ठीक है। एट डिनर, डिनर के साथ एट ही यूज होता है, करेक्ट। बट ये पूछ रहा है डिनर का कंटेंट क्या है। विजुलाइज अगेन, व्हाट आर वी हैविंग फॉर डिनर टुडे। डिनर में क्या मिलेगा, मीट मिलेगा, क्या मिलेगा, स्वीट्स कौन सी होगी, ठीक है। बेसिकली ये एट डिनर करेक्ट है, आप सही कह रहे हैं, एट डिनर ही होता है। बट यहाँ पे डिनर की बात नहीं है, डिनर के कंटेंट की बात है। दैट्स वाई यहाँ पे फॉर लगा है। 11 कैन बी यूज बाई 11। डॉक्टर सो द डिस्पेट ऑफ विल स्लो डाउन बाई द समर। हाँ, कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बाई यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब ये होगा कि समर तक आते आते वो खत्म हो जाएगा, बाई द समर। अगर ये कोरोना वायरस बिल्कुल एंड हो जाएगा बाय द समर, मतलब डेडलाइन है बाय द समर इट विल इरेडिकेटेड, खत्म हो जाएगा। बात स्लो डाउन की है, खत्म होने की नहीं है। स्लो डाउन इन समर, तो बाय द समर भी ठीक है, लेकिन बाय जनरली तब होता है जब डेडलाइन होती है किसी काम के लिए, वो स्लो डाउन की बात है। वायरस विल एंड अप अगर होता, वायरस विल एंड बाय द समर, तब सही था, तब बाय द समर ठीक था, ठीक है। आई कैन लीव, या सो क्लास इज ओवर। अनाउंसमेंट इज दिस, टुमारो 8 to 10, टुमारो GK session 8 to 10, and whatever is concerned keep sharing in group. Thank you so much.